اس مرحلے میں ہم بات کریں گے ووٹوں کی گنتی اور نتائج کے بارے میں۔ یہ ایک قابل غور مرحلہ ہے۔ جی ہاں، پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر ایک کشادہ اور محفوظ کمرے میں گنتی کے لیے مناسب جگہ بنائے، تمام پولنگ بوتھ سے بیلٹ باکسز اس محفوظ جگہ پر منتقل کرے اور اس پر لگائی گئی سیلز کے نمبر پولنگ ایجنٹس اور مبصرین کو پولنگ شروع ہونے سے پہلے نوٹ کیے گئے نمبروں سے موازنہ کرنے کے لیے کہے۔ گنتی کا عمل شروع کرنے سے قبل بیلٹ باکس کی سیل توڑنے کے لیے اس کا فالتو حصہ اوپر سے پکڑ کر مخالف سمت میں کھینچے۔ اگر سیل توڑنے میں کوئی مشکل ہو تو قینچی کی مدد سے سیل کا مرکزی حصہ کاٹ لے۔ یہ بتائیں کہ ووٹوں کی گنتی کا انعقاد کیسے ہوگا؟ پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے فوراً بعد ووٹوں کی گنتی کی تیاری کی جاتی ہے، کیونکہ گنتی کا عمل پریزائڈنگ آفیسر کے لیے ایک اہم اور حساس مراحل میں سے ایک ہے۔ گنتی کے عمل کو خوش اسلوبی اور مؤثر انداز میں سر انجام دینے کے لیے پریزائڈنگ افسر ان مراحل پر عمل کرے۔ پہلا مرحلہ گنتی کی تیاری، دوسرا مرحلہ ہر کیٹیگری کے لحاظ سے ووٹوں کو علیحدہ علیحدہ سیگریگیٹ کرنا، تیسرا مرحلہ ہر ایک کیٹیگری میں شامل ہر ایک امیدوار کے لحاظ سے ووٹوں کی گنتی کرنا، چوتھا مرحلہ بیلٹ پیپرز کو سنبھالنا، پانچواں مرحلہ گنتی کا گوشوارہ اور بیلٹ پیپر کے حساب کا گوشوارہ تیار کرنا۔ ان پانچوں مرحلوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا مرحلہ گنتی کی تیاری، تمام بیلٹ باکسز کی سیلیں توڑ کر ان سے تمام ووٹ نکال کر سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں۔ سارے بیلٹ باکسز سے نکلے ہوئے تمام ووٹوں کو گنیں اور اس تعداد کو ایک سادہ کاغذ پر نوٹ کر لیں۔ مشترکہ پولنگ سٹیشن کی صورت میں مرد اور خواتین ووٹرز کی تعداد الگ الگ درکار ہوگی، چنانچہ اس صورت میں مرد اور خواتین ووٹرز کے اعداد و شمار ایسے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مشترکہ پولنگ سٹیشن کی صورت میں مرد اور خواتین کے پولنگ بوتھ پر رکھے گئے بیلٹ باکسز میں موجود ووٹوں کو علیحدہ علیحدہ گن لیں اور ووٹوں کی تعداد نوٹ کریں۔ یا پھر اگر پولنگ سٹیشن پر مختص شدہ ووٹوں میں مرد اور خواتین دونوں قسم کے ووٹروں کی تعداد شامل ہو تو اس صورت میں خواتین پولنگ بوتھ پر استعمال شدہ اس کیٹیگری کی تمام بیلٹ پیپر بکس کے جاری کردہ بیلٹ پیپرز کے کاؤنٹر فوائل کی تعداد کو گن لیں جن پر بیلٹ پیپر جاری کیا گیا ہے۔ اس تعداد میں ایسے بیلٹ پیپر جن کو کسی بھی وجہ سے کینسل یا ٹینڈر کیا گیا ہو ان کے کاؤنٹر فوائل کی تعداد کو اس گنتی میں شامل نہ کریں۔ تمام جاری شدہ بیلٹ پیپروں کے لحاظ سے حاصل شدہ کاؤنٹر فوائلز خواتین ووٹرز کی تعداد کو ظاہر کرے گی، لہٰذا اس تعداد کو نوٹ کر لیں۔ اسی طرح مردانہ پولنگ بوتھ پر ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد گن کر نوٹ کر لیں۔ دوسرا مرحلہ کیٹیگری کے لحاظ سے ووٹ علیحدہ علیحدہ کرنا۔ یونین کاؤنسل اور یونین کمیٹی میں سیٹوں کی کیٹیگری کے لحاظ سے ووٹنگ کی صورت میں پولنگ عملے کی مدد سے اب تمام ووٹوں کو ہر کیٹیگری کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ کریں۔ اس طرح ہر کیٹیگری کے ووٹ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب ہر کیٹیگری کے لحاظ سے حاصل شدہ ووٹوں کی تعداد کو باری باری گن لیں اور ساتھ ساتھ کیٹیگری کے لحاظ سے ہونے والے ووٹوں کی تعداد کو سادہ کاغذ پر نوٹ کرتے جائیں۔ جب ہر کیٹیگری کے لحاظ سے ووٹوں کی تعداد نوٹ ہو جائے تو انہیں جمع کر لیں۔ اس مجموعے کو تیاری کے مرحلے میں بتائے ہوئے حاصل شدہ ووٹوں کے مجموعے سے موازنہ کریں۔ اگر دونوں مرحلوں کے مجموعے میں کوئی فرق نہیں تو اس بات کا اطمینان ہے کہ تمام بیلٹ باکسز سے نکلے ہوئے ووٹوں کو ہر کیٹیگری کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ کیا جا چکا ہے۔ میونسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹی کی جنرل سیٹ کے لحاظ سے ووٹوں کی صورت میں یاد رہے کہ میونسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹی میں براہ راست الیکشن صرف جنرل سیٹ کی کیٹیگری کے لیے ہے، اس لیے بیلٹ باکس میں سے نکلنے والے تمام بیلٹ پیپرز ایک ہی کیٹیگری کے لیے ہوں گے۔ تیسرا مرحلہ ہر کیٹیگری میں شامل ہر ایک امیدوار کے لحاظ سے ووٹوں کی گنتی کرنا۔ یونین کاؤنسل اور یونین کمیٹی کی سیٹوں کے لحاظ سے ووٹنگ کی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر کو ہر کیٹیگری میں شامل ہر ایک امیدوار کے لحاظ سے ووٹوں کی گنتی کرنی ہے۔ دوسرے مرحلے کے اختتام تک پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہر کیٹیگری کے ووٹ علیحدہ علیحدہ پڑے ہوئے ہیں۔ ایک وقت میں کسی ایک کیٹیگری میں شامل تمام امیدواروں کے لحاظ سے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ یہاں مثال کے طور پر پہلے یونین کاؤنسل کی کیٹیگری یعنی جنرل سیٹ کے حوالے سے ہر امیدوار کے ووٹوں کی گنتی کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر پولنگ عملے کی مدد سے یونین کاؤنسل کی کیٹیگری یعنی جنرل سیٹ کے لیے علیحدہ کیے گئے ووٹوں کو اٹھائے اور یہ کام سر انجام دے، جیسے کہ ووٹوں کو گنتی میں شامل یا خارج کرنے کے حوالے سے
हर बैलेट पेपर का सही तरीके से मुआयना करें। गिनती से खारिज शुदा वोटों को अलहदा रखते जाएं ताकि हर बैलेट पेपर का मुआयना मुकम्मल हो जाए। हासिल शुदा तादाद को साफ कागज पर लिख लें। ये मजमुआ गिनती के गोशवारा यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट के हिस्सा 2 के जुज 2 यानी सब पॉइंट 2 में लिखने के लिए हासिल किया गया है। अब गिनती में शामिल दुरुस्त वोटों को हर उम्मीदवार के लिहाज से अलहदा अलहदा कर लें और हर एक उम्मीदवार के लिहाज से गिनती में शामिल वोटों का मजमुआ एक अलहदा साफ कागज पर लिख लें। इस तरह गिनती के गोशवारा यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट में मौजूद कॉलम नंबर 4 को पुर करने के लिए भी एदाद और शुमार तैयार किए जा चुके हैं। इस कैटेगरी के लिहाज से तमाम चैलेंज शुदा बैलेट पेपर्स को लिफाफा ECP 7 से निकालकर गिनती में शामिल या खारिज करने के हवाले से हर सही तरीके से मुआयना करें। गिनती में शामिल होने वाले वोटों को उम्मीदवारों के लिहाज से अलहदा करें। हर एक उम्मीदवार के लिहाज से गिनती में शामिल वोटों के मजमुए के सामने तादाद भी लिख दें। इसी तरह गिनती के गोशवारा यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट में मौजूद कॉलम नंबर 5 को पुर करें। गिनती से खारिज होने वाले वोटों की कुल तादाद को सादा कागज पर नोट करें। अब इस कैटेगरी के लिहाज से तमाम चैलेंज शुदा बैलेट पेपर्स को यानी वो जो गिनती में शामिल किए गए और वो जो गिनती से खारिज शुदा हुए, इन तमाम को वापस लिफाफा ECP 7 में रखें। चौथा मरहला बैलेट पेपर्स को संभालना। हर उम्मीदवार के हासिल करदा वोटों को अलहदा अलहदा लिफाफा ECP 1 में रखें। याद रहे कि वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने कोई एक वोट भी हासिल किया हो, उन सब के लिए अलहदा अलहदा लिफाफा ECP 1 तैयार होगा। गिनती से खारिज शुदा तमाम वोटों को लिफाफा ECP 2 में रखें। तमाम ECP 1 लिफाफे और ECP 2 को बड़े लिफाफे ECP 3 में डाल दें। पांचवा मरहला गिनती का गोशवारा यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट और बैलेट पेपर के हिसाब का गोशवारा यानी बैलेट पेपर अकाउंट तैयार करना। सादा कागज पर तैयार किए गए एदाद और शुमार की मदद से हर कैटेगरी के लिए गिनती का गोशवारा फॉर्म 11 यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट तैयार करें। गिनती के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद पोलिंग एजेंट और मुबस्सिरीन को गिनती के अमल का मुशाहिदा करने की इजाजत दें। अच्छा सवाल ये बताइए, ये गिनती से खारिज शुदा वोट कौन से होते हैं? ऐसे बैलेट पेपर्स जिनकी पुश्त पर सरकारी निशान यानी ऑफिशियल कोड मार्क ना हो और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत ना हो, जो सरकारी बैलेट पेपर ना हो, जिस बैलेट पेपर पर 9 खानों वाली मोहर के अलावा कोई और निशान हो, जिस बैलेट पेपर के साथ कोई कागज या कोई और चीज मुंसलिक हो, जिस बैलेट पेपर पर मोहर का निशान ना हो या एक से ज्यादा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानों पर मोहर लगी हो, जिस बैलेट पेपर पर मोहर इस अंदाज से लगाई गई हो कि जिससे ये तयन ही ना हो सके कि किस उम्मीदवार के हक में लगाई गई है। गिनती से खारिज शुदा वोट अलग करने के बाद दुरुस्त वोटों की गिनती की जाएगी और उसे गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ काउंट में दाखिल किया जाएगा। इसके बाद उन्हें हर उम्मीदवार के लिहाज से अलहदा पैकेट्स में रखा जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि दुरुस्त वोट कौन से होते हैं? ऐसे तमाम बैलेट पेपर्स जिन पर वोटर ने वाज़ेह तौर पर किसी उम्मीदवार या निशान के सामने 9 खानों वाली मोहर लगाई हो। इसके अलावा ऐसे बैलेट पेपर जिन पर ज्यादा रोशनाई लगी हो या गलत तरीके से तय करने पर मोहर की स्याही का अक्स किसी दूसरे उम्मीदवार के निशान पर लग गया हो, लेकिन इससे ये वाज़ेह हो कि मोहर का निशान किसी खास उम्मीदवार के निशान पर लगाया गया है। जिस बैलेट पेपर पर मोहर 2 उम्मीदवारों के दरमियान लगाई गई हो, लेकिन किसी एक उम्मीदवार के निशान पर मोहर का ज्यादा हिस्सा हो, तो वो वोट उस उम्मीदवार की गिनती में शामिल किया जाएगा। जिस बैलेट पेपर पर एक ही उम्मीदवार के निशान पर एक से ज्यादा बार मोहर लगाई गई हो। गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट का फॉर्म 11 और बैलेट पेपर हिसाब के गोशवारे यानी बैलेट पेपर अकाउंट फॉर्म 12 को मुकम्मल करने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्मों पर दस्तखत करेगा और वहां मौजूद पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत लेगा। हर सीट की कैटेगरी के लिए अलहदा अलहदा यही तरीकेकार मुकम्मल किया जाएगा। हर पोलिंग एजेंट के लिए गिनती के गोशवारों यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट की कॉपियां बनवाएं और गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट की एक कॉपी ECP के लिफाफा 12 में
और बैलेट पेपर के हिसाब यानी बैलेट पेपर अकाउंट की एक कॉपी ECP के लिफाफा 13 में रखकर दोनों लिफाफों को सील किया जाएगा और उन्हें कैटेगरी के हिसाब से बैलेट पेपर वाले बैग में रखा जाएगा। गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट और बैलेट पेपर हिसाब यानी बैलेट पेपर अकाउंट की असल यानी ओरिजिनल कॉपी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अहम कामों की फहरिस्त यानी चेकलिस्ट टैम्पर एविडेंट बैग में बंद करके रिटर्निंग ऑफिसर को बाय हैंड दी जाएगी। गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट की कॉपी पोलिंग एजेंट्स को दी जाएगी और पोलिंग स्टेशन के बाहर चस्पा भी की जाएगी। याद रखें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट और अमले के सामने नतीजे का बुलंद आवाज में ऐलान भी करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन दोनों फॉर्म्स की कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखेगा। तमाम फॉर्म्स और गोशवारे मुतल्लिका लिफाफों में रखकर उन्हें पीतल की सील से बंद किया जाएगा। जी तो साथियों, हमने अभी तक आपको पोलिंग से पहले पोलिंग मटेरियल हासिल करने के बारे में बताया, फिर तौसीक ने आपको बताया कि किस तरह से पोलिंग स्टेशन को तरतीब देना है। इसके अलावा हमने बात की कि बैलेट पेपर्स किस तरह से बांटने हैं, फिर हमने बात की कि जो पोलिंग स्टेशन है उसको किस तरह से उसका क़याम में लाके पोलिंग के अमल को किस तरह जारी किया जाए और पूरे दिन में कौन सी चीज़ें हैं, कौन से नुकात हैं जिनको आपने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग स्टाफ की हैसियत से जहन में रखना है। ख़ासतौर पर सबा हमने बात की कि माजूर अफराद, नाबीना अफराद, हामला ख़वातीन, वो लोग जो चल नहीं सकते या एक हाथ या एक टांग से माजूर हैं या बहुत ज़ईफ़ हैं, उनको किस तरह से वोट डालने के लिए तरजीह देनी है। बिल्कुल, और क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं इस पूरे प्रोसेस के हवाले से वो भी आपको बताया। तौसीक, आई थिंक अब कुछ रह नहीं गया है, सब हमने बता दिया। सब बता दिया, लेकिन अभी एक दो मराहिल हैं बहुत अहम सबा जो हमने कवर करने। कौन से बताएं? वो ये है जनाब कि अब ये जो पूरा गिनती के बाद हमारे पास सामान है, बैलेट पेपर्स हैं, दूसरा पोलिंग का मटेरियल और सामान है, इसको किस तरह से हमने पैक करना है और किस तरह से वापस रिटर्निंग ऑफिस में जाके जमा कराना है, वो भी बाहिफाजत तरीके से। यकीनन। और अब सिलसिला है सामान को पैक करने का। इसको बाहिफाजत एक खास तरीके के मुताबिक पैक करना है। कुछ सामान रिकॉर्ड के लिए रख लिया जाएगा और कुछ आइंदा आने वाले इंतखाबात में इस्तेमाल होगा। तौसीक, इस तमाम सामान को पैक किया कैसे जाएगा? जी हाँ, सामान का कुछ हिस्सा साथियों लिफाफों में और कुछ हिस्सा थैलों में पैक किया जाएगा। लिफाफों में डाले जाने वाले सामान की तफसील ये है। ECP-1, इसमें हर उम्मीदवार के हासिल शुदा वोट डालें। ECP-2, इसमें गिनती से खारिज शुदा बैलेट पेपर डालें। ECP-3, इसमें ECP-1 और ECP-2 लिफाफे डालें। ECP-4, इसमें गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स डालें। ECP-5, इसमें ज़ाया शुदा बैलेट पेपर्स डालें। ECP-6, इसमें टेंडर्ड वोट डालें। ECP-7, इसमें चैलेंज शुदा वोट डालें। ECP-8, इसमें इंतखाबी फहरिस्तें डालें। ECP-9, इसमें इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स के मुसन्ना यानी काउंटर फॉइल्स डालें। ECP-10, इसमें टेंडर्ड वोटों की फहरिस्त डालें। ECP-11, इसमें चैलेंज शुदा वोटों की फहरिस्त डालें। ECP-12, इसमें गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट की कॉपी डालें। ECP-13, इसमें बैलेट पेपर के हिसाब के गोशवारे यानी बैलेट पेपर अकाउंट की कॉपी डालें। ECP-14, इसमें मुतफर्रक कागजात डालें और ECP-15, इसमें पीतल की मोहर डालें। तमाम इंतखाबी सामान और लिफाफों को 3 तरह के थैलों में पैक किया जाएगा। सब्ज थैले में यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से मुतालिका लिफाफे यानी ECP-3, ECP-4, ECP-5, ECP-6, ECP-7, ECP-9, ECP-12 और ECP-13 रखे जाएंगे। सफेद थैले में यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी के जनरल मेंबर से मुतालिका लिफाफे यानी ECP-3, ECP-4, ECP-5, ECP-6, ECP-7, ECP-9, ECP-12 और ECP-13 रखे जाएंगे। नीले थैले में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटी के जनरल मेंबर से मुतालिका लिफाफे यानी ECP-3, ECP-4, ECP-5, ECP-6, ECP-7, ECP-9, ECP-12 और ECP-13 रखे जाएंगे। खाकी रंग के बड़े थैले में सरबमोहर, छोटे सब्ज, सफेद और नीले थैले बशमूल ECP-8, ECP-10, ECP-11 और ECP-14 रखे जाएंगे। सुरमई रंग के बड़े थैले में बाकी बच जाने वाला सामान यानी तमाम किस्म की मोहरें, गैर इस्तेमाल शुदा अनमिट स्याही, स्टैम्प पैड, गैर इस्तेमाल शुदा स्टेशनरी, गैर इस्तेमाल शुदा लिफाफे और फॉर्म्स, गैर इस्तेमाल शुदा पोस्टर्स और इस्तेमाल शुदा सीलें रखी जाएंगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सामान की रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर को रवानगी के वक्त के बारे में फोकल पर्सन को बताएगा। याद रहे
कि सामान की रवानगी सख्त सिक्योरिटी में की जाएगी। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अहम कामों की फहरिस्त यानी चेकलिस्ट बराए प्रिजाइडिंग ऑफिसर दी जाएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देते हुए इसे टिक करेगा। तो साथियों, अब मैं ये बताऊंगी कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये सारा सामान वापस करेगा। तमाम सीट कैटेगरीज के गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट और बैलेट पेपर हिसाब यानी बैलेट पेपर अकाउंट, कब्ज़ुल वसूल, पीतल की सील, वोटिंग स्क्रीन, बैलेट बॉक्स, हसास और गैर हसास सामान पर मुश्तमिल दोनों बैग और टैम्पर एविडेंट बैग में सील शुदा स्टेटमेंट ऑफ द काउंट यानी गिनती का गोशवारा, बैलेट पेपर के हिसाब का गोशवारा यानी बैलेट पेपर अकाउंट और चेकलिस्ट, ये सब रिटर्निंग ऑफिसर को बाय हैंड दी जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट वसूल करते वक्त उसे चेक करेगा ताकि किसी भी किस्म का कोई मसला बाद में पेश ना आए। इस बात को यकीनी बनाने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी खत्म हो जाती है।